Good morning, friends. Friends, we are on the topic reconstruction of partnership, right? And in reconstruction, we have learned main three topics. Hope you are remembering. The first, we have learned the sacrifice ratio. Second, we have learned the gaining ratio. And third, we have started with the topic revaluation. And in that, we have done revaluation, two sums we have done. In the last lecture, we have taken question number 10. Friends, today we are going to take question number 11. So friends, let's see the question number 11. Now, what does this question says to you? Right. So here the question says to you, Manju, Prabha and Meena are the partners of a partnership firm. They are the partners, right? Their profit and loss sharing ratio is 5 is to 3 is to 2. That is their old ratio. And we should remember that in every calculation, we should take old ratio. And they want to change their profit and loss ratio to 3 is to 2 is to 1. It means they are changing. That is known as reconstruction. They are changing their ratio. Therefore, they decided to revalue the assets and liabilities of the firm. And from the following information, they're asking two things to you. Prepare revaluation account and balance sheet after revaluation. They're asking to you prepare the balance sheet also. So friends, let's see one by one. Then we will be more clear where we have to go. Friends, first topic is capital. So where we have to write. Already we have discussed, we have now capital also. We have the capital also and the current. In that cases, capital we have to take directly to balance sheet. Capital we have to directly to take in the balance sheet. So this capital, Manju, Prabha, Meena, it will go to directly to where? Yes, it goes to balance sheet, which side? Liability side, because it's given to us. Now the new topic is current account. Now where we have to write this particular current account. Current account we have to take in current account. We have to take in partners current account. We have to take in partners current account. Then comes non-current liability. May the first point they are asking to you 12% bank loan. It's a normal now. It's a non-current liability. So that also will come to non-current liability. That means the same side. Then comes current liability. In that creditors is there and the bills payable is there. Both will come to balance sheet liability side. Now comes the non-current asset. So it will come there only. Land and building will come, machinery will come, furniture and investment. All this will come in non-current asset. While in current asset, we can see its closing stock, debtors, bad debt reserve, bill receivable, and cash balance. Okay. So everything is very perfect where we have to write the same thing we have to do. So let's see now the topic. Now you can see that the first addition information is value of land and building is to be increased by 25%. So go to land and building and one adjustment. I'm just ticking here because already I put the tick mark here. Land and building adjustment. Like the last year we are doing the final account. No, in that way it comes. Okay. So land and building पे tick कर दो. Next is furniture is to be reduced by 10%. Now take the furniture. फर्नीचर को 10% क्या करना है फ्रेंड्स? कम करना है. तो फर्नीचर पे टिक कर दो. वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी केप्ट 80%. मशीन को 80% पे लाना है, मतलब 20% उसमें कम करना है. तो मशीन पे टिक कर दो. The book value of closing stock is 5,000 more its market value. Most important point, and lot of confusion is creating on this particular point. यानी क्या कहना चाहते हैं? The book value of closing stock, मतलब बुक में जो दिया है closing stock,
दैट इज 5,000 मोर, 5,000 ज्यादा है एज कंपेयर टू मार्केट वैल्यू। बुक में जो वैल्यू है वो 5,000 ज्यादा है। मतलब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्लोजिंग स्टॉक में से 5,000 कम करना है, क्योंकि बुक में जो दिया है वो 5,000 ज्यादा है। और ये जो बैलेंस शीट है वो कौन सा वैल्यू है फ्रेंड्स, इट इज बुक वैल्यू। तो 5,000 इसमें से कम करने को बोला है। Total amount of 2,500 is to be kept for bad debt reserve on debtors. बैड डेट रिजर्व 2,500 क्रिएट करने को बोला है। तो देखो ऑलरेडी कितना दे के रखा है, 1,000 इज गिवन टू अस, 1,000 इज गिवन टू अस। तो और इसके ऊपर कितना क्रिएट करना पड़ेगा आपको, 1,500 और हमें रखना पड़ेगा। An amount of 3,000 among the creditor is now not to be paid. Creditors को नहीं देने हैं। तो ये रहे क्रेडिटर्स, इस पे टिक करेंगे हम। डेटर्स पे एक टिक तो ऑलरेडी मतलब बैड डेट रिजर्व का पॉइंट के साथ चल जाएगा वो तो। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर लास्ट 3 मंथ इज आउटस्टैंडिंग। जो लोन लिया है ना हमने उसके ऊपर ऐसा बोला है कि 3 महीने का इंटरेस्ट। अब ये अलग से देंगे हम, इसके साथ नहीं लेना है, ठीक है। चलो, so friends, first we go to pass the journal entry and then we will prepare the revaluation और उसके बाद हम बैलेंस शीट। तो पहला पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 25%। चलो बोलो, इंक्रीज करना है। इंक्रीज करना है मतलब एसेट को इंक्रीज करना है। इफ एसेट टू बी इंक्रीज, रिवैल्यूएशन क्या करेंगे, बोलो फायदा है कि नुकसान है। रिवैल्यूएशन इज टू बी क्रेडिटेड। तो चलो एंट्री, फर्स्ट एंट्री, चलो हेडिंग दो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसमें कॉलम तैयार करो, सीरियल नंबर, डेट है नहीं इसमें, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, सीरियल नंबर, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। फर्स्ट एंट्री रेडी। लैंड एंड बिल्डिंग से क्या हुआ है, हमें फायदा हुआ है। फायदा हुआ है मतलब रिवैल्यूएशन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो व्हाट इज अवर फर्स्ट एंट्री, और फर्स्ट एंट्री इज land and building account debited, land and building account debited to revaluation account, land and building account debited to revaluation account। चलो कैलकुलेट करो, 25% बोला हुआ है। तो लैंड एंड बिल्डिंग देखो 1 लाख है, 1,25,000%, तो इट्स वेरी इजी कैलकुलेशन। 25,000 का इंक्रीज हुआ है, 25,000 का इंक्रीज हुआ है। और नरेशन लिखेंगे, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू इज इंक्रीज। क्लियर। नेक्स्ट है फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। तो फर्नीचर पे आओ। अब फर्नीचर देखो आपका एसेट है, फर्नीचर अगेन एसेट है अपना। एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है, इफ इट इज डिक्रीजिंग, तो हमें नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है दैट मीन्स रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो सेकेंड एंट्री आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। अब 10% से कम करो। अब फर्नीचर देखो आपका 30,000 है, उसका 10% करे तो इट कम्स टू 3,000। 3,000 narration being furniture value
being furniture value is reduced. क्लियर? ये हुआ अपना सेकेंड वन. थर्ड है वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी केप्ट 80%. वॉट एवर इट इज ऑलवेज 100%, हमेशा 100% पे रहता है. अब बोला है कि इसे 80% कम कर दो. 80% कर दो मतलब व्हाट डज इट मीन? मशीनरी एसेट, एसेट क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो रिवैल्यूएशन क्या करेंगे? डेबिट. नुकसान हो रहा है, रिवैल्यूएशन क्या करेंगे? डेबिट. तो फिर से क्या एंट्री करेंगे? थर्ड में नुकसान हो रहा है, बोलो. नुकसान में रिवैल्यूएशन डेबिट. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट. और 80% करने को बोला हुआ है. तो मशीनरी देखो 50,000 पे, तो कैलसी पे आ जाओ. 50,000 का 20% भी आप कर सकते हो या फिर 80 भी कर सकते हो, वन एंड द सेम थिंग. तो 50 का 20 कर लेते हैं. 50,000 का हाउ टू डू? 50,000 का कितना परसेंट कम करो? 20% कम करो. तो 50,000 इंटू 20%, दैट इज 10,000 कम कर दो. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी 10,000 कम कर दो. नरेशन बीइंग मशीनरी वैल्यू इज रिड्यूस. मशीन का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है. आगे द बुक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000 मोर इट्स मार्केट वैल्यू. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमें ज्यादा करने को बोला है, राइट. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम चल रहा है, यानी हमें कम करना पड़ेगा. तो फिर से ये हमारे लिए क्या है? नुकसान. नुकसान के एंट्री क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्लोजिंग स्टॉक, टू क्लोजिंग स्टॉक. हाउ मच? 5,000, 5,000 कम हो रहा है. नरेशन बीइंग stock value is more in market, while stock value is more in market. तो बुक में तो कम करना पड़ेगा आपको. क्लियर? So now up to here we have completed. So let's see now the next point. Total amount of 2,500 is to be kept for bad debt reserve on debtors. कितना देना है? 2,500 देना है. और यहाँ देखो फ्रेंड्स, ऑलरेडी कितना दे के रखा है? 1,000 दे के रखा है. अगर 1,000 दे के रखा है, इट मीन्स और कितने की जरूरत है हमें? वी रिक्वायर मोर 1,500, और 1,500 रुपए हमें देना है. 1,500 हमें देना है. तो ये भी हमारे लिए नुकसान है. फिफ्थ में आओ. नुकसान है, नुकसान के लिए रिवैल्यूएशन क्या करेंगे? डेबिट. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिजर्व, टू बैड डेट रिजर्व. कितना? 1,500. वाई 1,500? बिकॉज टोटल 2,500 देना है, उसमें से 1,000 इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड. 1,000 दे के रखा है हमने. An amount of 3,000 among the creditor is now not to be paid. 3,000 रुपए हमें नहीं देना है. नहीं देना है, क्रेडिटर नहीं देना है, मतलब क्या हो रहा है आपको पता है? इट्स अ लायबिलिटी. नाउ लायबिलिटी नहीं देना है, तो लायबिलिटी का वैल्यू कम होगा. कम होगा तो रिवैल्यूएशन क्या करेंगे? क्रेडिट. फायदा हो रहा है. तो एंट्री creditors account debited, creditors account debited to revaluation, creditors account debited to revaluation.
कितना, इट कम्स टू 3000, इट कम्स टू 3000। लास्ट पॉइंट ये कहना चाहते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 3 months इज आउटस्टैंडिंग, 3 महीने का बाकी है। तो चलो लोन देखो कितना है, 30,000, आई कैन सी 30,000 का लोन है और 12% इंटरेस्ट है। सो 30,000 इंटू 12% और 3 महीने का बाकी इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। सो कैलकुलेट करते हैं, 30,000 इंटू 12% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 900 रुपए इंटरेस्ट देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग। तो ये तो लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी आपकी बढ़ गई तो रिवैल्यूएशन क्या करेंगे, डेबिट, नुकसान हो गई। तो एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, हमें इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, राइट, इंटरेस्ट ऑन लोन। हाउ मच, 900, 900। लास्ट है अपना, हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे पता चलता है, प्रॉफिट है कि लॉस है, उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, राइट। और उसका इजी तरीका, इट वाज वन एंड वन इजी टेक्निक आल्सो इज दैट, वेयरएवर द रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड उसे आप प्लस करोगे, और जहां पे भी रिवैल्यूएशन डेबिट होता है वो हम क्या करेंगे, माइनस। तो अब देखो क्रेडिट में देखो 25,000 प्लस किया, डेबिट में देखो 3,000 वो माइनस किया, डेबिट में फिर से 10,000 माइनस किया, रिवैल्यूएशन में डेबिट फिर से 5,000 माइनस किया, 1,500 वो भी माइनस हुआ, डेबिट हुआ है। क्रेडिट में 3,000 तो प्लस हुआ, अब डेबिट में 900 माइनस हुआ। सो 7,600 का फायदा है, फायदा है मतलब पार्टनर्स को देना होता है, टू पार्टनर्स। अब यहाँ पे करंट अकाउंट बोला हुआ है, दैट्स वाई टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, नॉट पार्टनर, आई कैन से पार्टनर्स के नाम, मंजू, प्रभा, मीना, टू मंजूस करंट अकाउंट, टू प्रभास करंट अकाउंट, टू मीनास करंट अकाउंट। और यहां हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन, यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड। अब रिवैल्यूएशन में कितना गैप आया अपना, 7,600। अब कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज द ओल्ड रेशियो, ओल्ड है हमारा 5:3:2। तो चलो कैलकुलेट करो, 7,600 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, 3,800। मंजू को कितना देंगे, 3,800। फिर आगे बढ़ते हैं, 7,600 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, प्रभा को देना है 2,280। मीना 7,600 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10, 1,520, राइट। तो फ्रेंड्स ये इसकी जर्नल एंट्री थी, ये इसके बेसिक है। ये अगर आपको आ रहा है दैट मीन्स लॉट ऑफ थिंग विल बिकम इजी इन द कमिंग लेक्चर्स एंड कमिंग पीरियड्स। ओके, तो क्लियर हो गया क्या कंसेप्ट है। एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, एसेट का वैल्यू घटेगा, रिवैल्यूएशन डेबिट, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा, रिवैल्यूएशन डेबिट, लायबिलिटी का वैल्यू घटेगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब इसके बाद हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट।
और उसके लिए मैंने आपको क्या समझाया था, बहुत सिंपल है, डेबिट है तो डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट। चलो आप लोग हेडिंग दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट के नाम से भी पहचाना जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, in bracket you can write profit and loss adjustment account of the partnership firm. Revaluation account bracket profit and loss adjustment account of partnership firm. So let's start our topic. So friends, first we have seen the first journal entry, we have seen land and building to revaluation. तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है तो किस तरफ जाना है, क्रेडिट साइड पे जाओ, क्रेडिट पे लिखो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। सेकेंड है रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर। अब रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, अब डेबिट हुआ है तो डेबिट में लिखो टू फर्नीचर 3,000, टू फर्नीचर 3,000। पता चल रहा है, इट बिकम्स वेरी इजी। थर्ड में रिवैल्यूएशन फिर से डेबिट हुआ है तो डेबिट में लिखो टू मशीनरी 10,000। फोर्थ में रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है क्लोजिंग स्टॉक के साथ तो डेबिट में फिर से क्लोजिंग स्टॉक BDR 1500, फिर से डेबिट में टू BDR 1500, देखो 2500 माइनस 1000। फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट में बाय क्रेडिटर्स। सेवेंथ में रिवैल्यूएशन टू इंटरेस्ट ऑन लोन, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन 900। एंड लास्ट में रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है इसलिए डेबिट में टू पार्टनर्स करंट अकाउंट मंजू प्रभा मीना, तो ये आ जाएगा 7,600। क्लियर। अब हमें एक अलग, वी हैव टू प्रिपेयर अ न्यू अकाउंट फ्रेंड्स, दैट इज कैपिटल तो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। राइट नाउ वी डोंट रिक्वायर दिस अकाउंट, हमें बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलो ये हेडिंग दो, पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म for the year ending on 31/3/17, for the year ending on 31/3/17। कॉलम तैयार करो, कॉलम है डेट, पर्टिकुलर्स मंजू प्रभा मीना, वैसे ही क्रेडिट साइड पे भी क्रेडिट ऑल्सो राइट डाउन डेट पर्टिकुलर्स मंजू प्रभा मीना। अब कैपिट करंट अकाउंट, what I said to you, current account we have to write in partners current account, तो current account के क्रेडिट में आओ, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में आओ, लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। क्या लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 10,000, 20,000 एंड 9,000 हो गया। देन आफ्टर दैट वी कैन सी दिस वन, देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, करंट करंट करंट, पता चल रहा है। एक तो बैलेंस लिया हमने, अब दूसरा क्या ले रहे हैं हम, करंट अकाउंट ले रहे हैं, जो प्रॉफिट हुआ है ना वो वाला। क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट में जाएंगे, गो टू क्रेडिट साइड, क्रेडिट में लिखो बाय रिवैल्यूएशन 3,800, 2,280, 1,520। अब इसका टोटल करो आप, टोटल आएगा 13,800, 2,280, 1,0520। इन तीनों का टोटल कर दो आप, इन तीनों का टोटल कर दो और माइनस करके बैलेंस निकालो।
so you should get this one. 13800 2280 10520 हो गया। अब आगे बढ़ो तो बैलेंस शीट में पहुंचते हैं। बैलेंस शीट में पहुंचो, यहाँ पे आपको याद है हमने लाइन छुड़ा हुआ है, तो वैसे ही हम शुरू करेंगे। द फर्स्ट इज कैपिटल, मंजू, प्रभा, मीना, ये हो गया अपना। क्रेडिटर्स कोई टिक नहीं है, आउटर कॉलम। लोन अपने ऊपर है, अगर आपको अलग से लिखना है तो अलग से, साथ में लिखना है तो साथ में। तो लोन 30,000 और 900, 30,900। बिल पेएबल, ये कितना लिखेंगे, आउटर कॉलम 10,000। करंट अकाउंट का आंसर आपको अभी याद है हमने कहां से किया था, देखो ये बैलेंस, तो ये बैलेंस डायरेक्टली करंट अकाउंट में पहुंचेगा और ये आंसर देगा, सही है। देन कम्स द टॉपिक लैंड एंड बिल्डिंग। 1 लाख इंक्रीज 25, 125। मशीन 50, उसमें 10,000 कम, 40,000। फर्नीचर 30, उसमें 3,000 कम, 27। इन्वेस्टमेंट 50,000। स्टॉक में 40, उसमें 5,000 कम, 35। डेटर्स में 1,000 था, प्लस 1,500 हमने बढ़ा दिया, तो 22,500। बिल रिसीवेबल 5,000, कैश बैलेंस 40,000, तो टोटल आएगा आपको 3,44,500, 3,44,500, राइट। चलो टोटल करो जल्दी से आप बैलेंस शीट का। टोटल करो जल्दी से। राइट, तो वापस एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कैपिटल कहाँ जाएगा, डायरेक्टली बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। करंट अकाउंट पार्टनर्स, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। लोन लायबिलिटी नॉन करंट, करंट लायबिलिटी क्रेडिटर और बिल पेएबल। नॉन करंट एसेट लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सब एसेट में चला जाएगा। करंट एसेट में लेके जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना है तो एसेट बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। फर्नीचर को कम करना है, एसेट कम हो रहा है तो डेबिट होगा। मशीन को 80% पे लाना है, कम करना है, डेबिट होगा। क्लोजिंग स्टॉक 5,000 को बढ़ाना है, कम करना है तो कम होगा। डेटर्स में 1,500 को बढ़ाना है तो प्लस करेंगे, नुकसान है। क्रेडिटर को नहीं देना है तो लायबिलिटी कम होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन 900 रुपए का हम देंगे। दिस इज अवर जर्नल एंट्री। जहां पे भी फायदा है वहां रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और जहां पे भी नुकसान है वहां रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम है। कैपिटल हमने नहीं बनाया क्योंकि वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाता है। करंट अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि वो प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ता है, इसलिए आफ्टर प्रिपेयरिंग करंट अकाउंट डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएंगे, राइट। सो आई होप दिस सम क्लियर हो गया। ओके देन, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पीरियड। ये सम आपको अच्छी तरीके से एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।